Then please mute all. If you want to listen, then please mute all. Have you muted all? Have you muted all? Okay. So Photoshop, everyone have completed Photoshop tools, especially tools you already know. Class 8 book, IT Planet. I hope everyone have completed book. E version everyone have. सभी के पास ये E version है. कोई ऐसा है जिसके पास ये E version नहीं है? ओके जिसको भी अपनी बात करनी है, कुछ भी पूछना है, वो अपने माइक को अनम्यूट करके पूछेगा और पूछने के तुरंत बाद म्यूट कर लेगा अपने आप को, जिससे मेरी आवाज उस तक पहुंच पाए। और अगर ये ध्यान रखेंगे, अगर कोई बोल रहा है ऑलरेडी, इट मींस अगर आप भी उसी समय अनम्यूट करते हैं तो आप लोग की बात जो है ना क्लैश करेगी और किसी की आवाज नहीं क्लियर हो पाएगी। इसीलिए पूछते समय ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछ रहा है तो 2 मिनट रुक के फिर पूछिएगा। Now, if you have any doubt, let's start related to Photoshop. Let's see Photoshop chapter. Page number 120. Page number 120. Photoshop, chapter number 9. Any doubt related to Yes, Adobe sir. Photoshop? Let's start. Let's start. Okay, so let's I'm asking some question. If you know already answer, then I'm asking some question. What is paintbrush and airbrush? Who will answer? What is paintbrush and airbrush? One by one by if someone is every time you have to mute it or why now I'm mute. Why you बड़ी गए लेकिन अभी अभी आई मेरा कहाँ गई है मौसा निशाना। हाँ okay, please don't talk and don't make any drawing. जब ड्राइंग बोला जाए तो बनाइएगा, अभी ड्राइंग मत बनाइए प्लीज आप लोग। So students, who will answer what is paintbrush and airbrush? What is graphics editing software? Graphics editing software. Who will answer? Graphics editing software. Graphics editing software. Graphics editing software. Who will answer? Aishwarya, raised hand. Tell me, what is graphics editing software? Okay, I think you all are muted. So I'm doing unmute. Please take care. आप लोग ध्यान रखिएगा जब मैं unmute कर रहा हूँ. It doesn't means आप सभी लोग एक साथ बोलना शुरू कर दीजिए. Clear? Sir, What is paintbrush and air? Sir, can I tell? Now you answer.
Sir, airbrush is used to draw soft lines or darker on our photo in Photoshop, and paint brush is used to paint the photo. As the name suggests, paintbrush. What it means? Paintbrush means it's paint on the canvas. It may be dark, may be lighter. Airbrush is what? Whenever we spray anything, अब जब हम स्प्रे करते हैं तो कलर कैसे अप्लाई होता है? स्प्रे के फॉर्म में होता है ना, दैट इज एयर ब्रश. अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? Yes, sir. जो हम पेंटिंग Yes, कर sir. रहे हैं तो Yes, sir. एयर ब्रश, जैसे आजकल सैनिटाइजर हम लोग स्प्रे करते ही नहीं करते हैं, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मैं कलर स्प्रे करूं तो कैसे कलर चढ़ता है? मतलब वो ये चारों तरफ उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे. दैट इज पेंट ब्रश एंड डिफरेंस ऑफ एयर ब्रश. पेंसिल टूल. पेंसिल टूल. अब आप लोग को छोड़ के कोई तीसरा आंसर देगा. पेंसिल टूल. व्हाट इज पेंसिल टूल? हु विल आंसर? पेंसिल टूल. Sir, pencil tool is used to draw a straight line in Photoshop. नो. So pencil tool is to use to ड्राइंग the टूल. pencil tool is used to straight line, curved draw a lines, thing like a pen. size and shapes. Okay. Photoshop tools. These are the Photoshop tools. Means pixels, painting image, adjusting color, applying effect, applying filter, and adding text. These are the tools which we do on Photoshop. Okay. my next question is how to find images for your work. अगर आपको शॉप पे काम करना है तो आपको इमेज कहाँ से मिलेगा? Who will answer? First tell your name, then start to answer. Just 29 students reach here. Rest of all, where it is, I don't know. Let me check. Who will answer? Where we get images for our work? कैसे इमेज मिलेगा? कहाँ से इमेज मिलेगा? कौन बताएगा आंसर? Sir, can I tell? Aishwarya Singh. बाकी लोग नहीं बताने के लिए यहाँ बैठे हैं क्या? चलो बताओ ऐश्वर्या. Sir, we can create photos on Photoshop only. Sir, second on desktop on our laptop or computer desktop. Or sir, we can click images, scan images, or we can use images from Clipart, etc. Sir, we can use also digital images. Yes. And in computer, what are the 4 sources where we get the images? Tell me, what are the 4 sources from where we get the images? Sir, What are the sources where we get? Please answer. Sir, we can use clipart collection in computer for opening an image, and we use scanners to scan photo in computer. And another we can create a blank canvas in Photoshop. Many websites offer images to download from.
जो पढ़ के जो लिखा हुआ बस वही पढ़ के बता देना। अरे बेटा No, चार sir. चीज। नो सर, बुक में जो वही तो पढ़ रहे हो जो बुक में लिखा है। चार सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? वो सोर्सेज होते हैं डॉक्यूमेंट से आप अपना सेव करते हैं, कोई भी फोटो, कोई भी इमेजेस, कोई भी फाइल करते हैं कि नहीं करते हैं? Yes, तो sir. पहला क्या हो गया? डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा हो गया ड्राइव, C drive, D drive, E drive, F drive, G drive, whatever drive you mentioned in your computer. The first document, second drive, third is download folder. आप कोई भी इंटरनेट से अगर इमेज डाउनलोड करते हैं तो किस फोल्डर में जाता है? डाउनलोड फोल्डर। एंड फोर्थ इज डेस्कटॉप। चौथा क्या है? डेस्कटॉप। तो ये चार सोर्सेज हैं जहां से आप इमेजेस को उठाते हैं अब अपने काम के लिए। कौन कौन से सोर्सेज हैं? Sir, document, drive, Sir, document, and drive, desktop desktop, download. download. यस, डॉक्यूमेंट, ड्राइव, Okay. डेस्कटॉप एंड डाउनलोड, ये चार फोल्डर है कि नहीं है? Yes, इसके sir. अलावा सिस्टम आपको इमेज मिल सकता है ऑफलाइन? No, sir. No, sir. No, ऑफ sir. ऑफलाइन। तो ये चार आपके इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आता है तो आप, ये कोई जरूरी नहीं कि जो लिखा हुआ एकदम एज इट इज यही लिखें, ठीक है? कि you can create your images by opening a blank canvas in the image window, that you can apply color and patterns in Photoshop painting tool. You can use scanner to scan photos and art into your computer. You can use clip art collection if you want to wide variety of image content to work with it. तो ये क्या है बेटा? ये तो बुक में तो लिखा ही हुआ है। आपको ये चीजें जाननी है ना कि ये मान लीजिए आपने कोई स्कैन कर लिया फोटो, स्कैन करिए तो कहाँ जाएगा? या तो डॉक्यूमेंट में जाएगा या तो डाउनलोड में जाएगा, कहीं तो जाएगा, किसी ड्राइव में जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. इन्हीं चार कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. So these are the four sources where you get the images for your computer. Clear? Yes, Any sir. doubt है? इसमें कोई भी डाउट है किसी के पास? चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टार्टिंग फोटोशॉप। Sir. स्टार्टिंग फोटोशॉप। फोटोशॉप कैसे स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सिस्टम में मैं फोटोशॉप स्टार्ट करके बताता हूँ। तो लिखते हैं PHOTOSHOP। कहाँ लिखेंगे? सर्च बॉक्स में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? या विंडो Search box. Search box. SHOP। रन वाले में भी लिख देंगे तो भी आपका फोटोशॉप ओपन होने लगेगा। क्लियर? PHOTO क्या लिखेंगे? SHOP क्या लिखेंगे? अगर आपका एप्लीकेशन है तो एडोब फोटोशॉप ये बन के आएगा, और अगर नहीं है तो नहीं बन के आएगा। तो ऑलरेडी मेरा फोटोशॉप खुल रहा है, ये देखिए सिस्टम में हमारे है। मैंने रन पे फोटोशॉप टाइप किया था और एंटर कर दिया था तो फोटोशॉप खुल गया। So that is the way how to open Microsoft Adobe Photoshop. That is the way how to open Adobe Photoshop. है कि नहीं? किसी को डाउट है इसमें? Anyone No, have sir. any doubt regarding? So No, let's sir. see. Now यहाँ पे क्या है? आपका टाइटल बार है, then फाइल, यहाँ पे फाइल टैब, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडोज एंड हेल्प, है कि नहीं? Yes, फिर sir. यहाँ पे Yes, sir. उसके नीचे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जैसे फॉन्ट साइज, मीडियम, पॉइंटर, शार्पनेस, अलाइनमेंट, कलर दिए नहीं। ये टूल बार है। ये क्या है? ये Toolbar. ये टूल बार है। क्या है? ये टूल बार है। जहां हमारा कर्सर है दैट इज कॉल्ड टूल बार। Toolbar. आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा ये क्या है? ये क्या है? ये टूल बार क्या है? क्या है बेटा ये? Toolbar. 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 Here palettes are there. Palettes क्या होते हैं? मैं दिखाता हूँ आपको। These are the palettes. ये क्या है? ये क्या है? Palette. इन्फो, कलर स्विचेज एंड स्टाइल पैलेट, फिर हिस्ट्री, एक्शन एंड टूल प्रीसेट पैलेट, फिर लेयर, चैनल एंड पाथ पैलेट्स। इन सब का काम क्या है? सबका कुछ ना कुछ काम होता है। कोई भी इमेज, अभी क्या है मेरे पास, कोई इमेज है यहाँ पे? कोई इमेज है यहाँ पे? है? No, sir.
सर इमेज नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इमेज लेंगे। क्या लेंगे? Image. इमेज लेंगे। तो इमेज लेने के लिए हमें, अभी मैंने बताया था ना, जो 4 सोर्सेज है हमारे पास, सोर्सेज है कि नहीं? Yes, sir. Then we ओपन ऑप्शन और चेक करेंगे कहाँ पे हमारे पास फोटोज हैं। अब मुझे पता ही नहीं है कि मेरे सिस्टम में फोटो कहाँ है, तो डॉक्यूमेंट में जाएंगे, देखेंगे कोई फोटो अगर मिल जाएगी तो उस पर क्लिक करेंगे। अगर मुझे पता नहीं है तो दिस पीसी पे जाएंगे और यहाँ सर्च कर सकते हैं फोटो। देखिए लाइब्रेरी में गए, सेव इमेजेस में गए, यहाँ पे कोई इमेज है नहीं, फिर वापस हम गए यहाँ पे सिस्टम पे, डेस्कटॉप पे गए, ठीक है, डेस्कटॉप पे मैं गया, डेस्कटॉप पे मैं देखा एक फोटो पड़ा हुआ है, इस फोटो को मैं क्लिक कर दूंगा, ये क्या आ गया, फोटो आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. And this is the way how to get your images. Okay, ये क्या है, ये तरीका है कैसे आप इमेज मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे देखिए पूरा लिखा हुआ है कौन सा क्या है, मेन्यू बार, ऑप्शन बार, टाइटल बार, टूल बॉक्स, स्टेटस बार, इमेज विंडो एंड पैलेट्स। अभी मैंने यही बताया था ना आप लोग को। Yes, sir. Yes, sir. Now my question is, what is menu bar? Who will answer? Menu bar. What is menu bar? What is menu bar? Menus. Sir, menu bar contain menu commands. Sir, it contains Photoshop's commands and functions. Yes. Function क्या होता है? What is function? Function. Who will answer? Function. Function. Sir, Okay, what is title bar? Short things then that we do in Photoshop is called functions. Okay, whatever action we are doing on Photoshop, that is done by a specific command that is called function. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, what are palettes? अभी मैंने बताया था palettes. Palettes. What are palettes? आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। Palettes are small window. That gives you a common command and resources. ये क्या कहता है, हमें कॉमन कमांड और रिसोर्सेज एक्सेस कराता है। क्लियर? कैसे? जब हम फोटोशॉप में, मैंने जब पिछली बार आप लोग को बताया था, एडिटिंग कर रहे थे तो उसमें हमने एक्सेस किया था कि नहीं किया था? सो दीज आर द वर्किंग मॉड्यूल। वर्किंग कैसे ओपन करते हैं अभी मैंने ये बताया। प्लीज समवन ऑलरेडी अनम्यूटेड हिमसेल्फ, प्लीज म्यूट ऑल, अदरवाइज मेरी बात रिपीट होगी। म्यूट हो गया? ठीक है, चलिए। तो इमेजेस में अब एक एक टूल्स को हम जानेंगे। अभी क्या है, ये सिंपली किसी भी इमेज को कैसे हम अपने कैनवस पे रखते हैं वो दिखा रहा है। नाउ यहाँ पे मेजरमेंट्स यूनिट इन फोटोशॉप, देखो ये सभी लोग पढ़ेंगे मन में। यू शुड यूज द यूनिट मोस्ट applicable to the type of output you intend to produce. Pixels unit are useful for wave images because monitor dimension are measured in pixels, inches, centimeters and picos are useful for print because those are standard for working on paper. You can set this under the unit and rulers preferences. Okay, unit क्या होता है? Photoshop की unit क्या होती है? What is the unit of Photoshop? Photoshop की यूनिट, Photoshop unit. What are the Photoshop unit? Sir, pixel. Yes, pixels are Photoshop unit. Clear? Now अब हमारे पास अगला टॉपिक है चेंजिंग ऑन स्क्रीन साइज ऑफ इमेज। इमेज की साइज को कैसे हम कम करते हैं, अधिक करते हैं, तो आइए फोटोशॉप से ही मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा इमेज है। Sir, I have a question. पूछो। Sir, what is Picas? पीकॉस क्या होता है? हाई डायमेंशंस यूनिट है, उसे क्या करते हैं हम हमेशा प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं।
जैसे इंचेज होता है, सेंटीमीटर होता है, वैसे ही पिकास होता है। क्या है वो भी? क्या है? यूनिट है। क्या है वो? Unit. यूनिट। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. चलो नेक्स्ट। अब हम बताते हैं कैसे इमेज को हम अधिक करते हैं या कम करते हैं। तो इमेज में जाएंगे, इमेज साइज का ऑप्शन है। क्या है यहाँ पे? इमेज साइज का ऑप्शन है। यहां से हम क्या कर सकते हैं? हाइट और विड्थ को हम पिक्सेल्स में बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी मैंने बात किया था ना, यूनिट क्या है? पिक्सेल्स है, यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, पिक्सल और परसेंटेज, या इंचेज या सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, पॉइंट्स, पिक्सल और कॉलम, पिकास दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है? दिया है कि नहीं दिया है? देखिए Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिया है कि नहीं दिया है? ये क्या है? यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं? Unit. यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं? और 350 में Unit. इसमें मैं 551 तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि दोनों को मैंने टाई अप कर रखा था। अभी मैं इसको हटा दूंगा तो प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा। तो मैंने इसको प्रोपोर्शन दे दिया 350 हाइट और 350 विड्थ। का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज साइज पे जाएंगे। कैनवस साइज ये हो गया। कैनवस साइज में यहाँ पे 10 इंच दे रहा हूँ। देखिए कैनवस साइज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? कैनवस साइज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? विड्थ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? Yes, sir. Yes, sir. विड्थ बढ़ गया। अभी देखिए कैनवस साइज, यहाँ पे विड्थ में फिर से 3.6 कर दे रहा हूँ, तो स्मॉलर देन इमेज साइज। तो ये नहीं हम करेंगे, तो 4 कर दे रहे हैं। यहाँ पे हो गया। यहाँ पे हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. छोटा हो गया। Yes, sir. कैनवस की हाइट बढ़ा देते हैं। हाइट मैंने यहाँ पे कर दिया 8। क्या कर दिया यहाँ पे? 8 का कैनवस की हाइट बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इमेज साइज पे आते हैं। विड्थ यहाँ पे मैंने कर दिया 6 या कर दिया यहाँ पे 10 और ओके कर दिया। देखिए बढ़ा कि नहीं बढ़ा? साइज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो ये तो था कैसे हम साइज को चेंज करते हैं। यही था ना हमारा ऑप्शन, साइज को कैसे चेंज करते हैं। Yes, sir. अभी कैनवस सेकंड है चेंजिंग द कैनवस साइज। तो वो भी मैंने आपको बताया कैसे कैनवस साइज को चेंज करते हैं। ओके, नाउ क्रॉपिंग द इमेज। कैसे क्रॉप करते हैं? लेट्स सी हाउ टू क्रॉप एन इमेज। इसमें मुझे क्रॉप करना है, तो क्रॉप करने के लिए एक हम पहले ब्लैंक भी ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैंक ले लिया। क्लियर? इसमें से कुछ पोर्शन क्रॉप करेंगे। सपोज दैट ये रेड वाला एरिया थोड़ा सा क्रॉप कर दे। क्रॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? फिर मूव Yes, टूल sir. यूज करेंगे और क्रॉप कर देंगे। पहले सिलेक्शन हो गया, फिर मूव टूल। अब ये कौन सा लेयर है? CMYK बैकग्राउंड लेयर। तो हम क्या करते हैं, किसी पोर्शन को, इमेज के किसी पोर्शन को अगर हम कट करते हैं और दूसरी जगह ले जाते हैं, दैट इज क्रॉपिंग। क्या है वो? दैट इज Cropping. Cropping. अब देखिए चेंजिंग द साइज ऑफ एन इमेज फॉर वेब। वेब के लिए कैसे करते हैं? फाइल में जाते हैं, सेव फॉर वेब एंड डिवाइसेस कर देते हैं। या यहाँ पे दिया हुआ है कैसे हम कैनवस साइज को और इमेज साइज को चेंज करते हैं। क्लियर? Yes, sir. डू यू नो सभी लोग मन में पढ़ेंगे। To determine the printed size of Photoshop image, you can divide on-screen size by resolution. If you have an image with an on-screen width of 480 pixel and a resolution of 120 pixel per inch, the printed width is 4 inches. समझ में आया? ये कह रहा है कि अगर ऑन स्क्रीन की साइज को आप रिजोल्यूशन में डिवाइड कर देंगे तो
और इमेज की अगर विड्थ 480 पिक्सल है और रिजोल्यूशन 120 पिक्सल पर इंच है तो प्रिंटेड विड्थ कितना होगा? 4 इंच होगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जूम टूल सबको पता है कि इमेज को इनलार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं? जूम टूल का यूज करते हैं। क्या ये करते हैं? Zoom tool टूल का यूज करते हैं। एक मैग्नीफाई, यहाँ पे ये जूम टूल है, टूल बॉक्स में जाएंगे, जूम टूल है, हम जूम टूल करते ही क्या मैग्नीफाई हो जाता है। क्या होता है? मैग्नीफाई हो जाता है। और फिर जूम आउट करेंगे तो वापस हम आ जाते हैं। जूम आउट करेंगे तो टाइम स्क्रीन कर देंगे, एक्चुअल पिक्सल कर देंगे तो हो गया। ये हो गया नहीं हो गया? ये जूम है, ये जूम आउट है। जूम इन है और जूम आउट। कोई डाउट है किसी को? No, sir. किसी No, sir. नो सर। ओके, मैजिक वेंड टूल। मैजिक वेंड टूल क्या करता है? सिलेक्शन करता है। क्या करता है? सिलेक्शन करता है। चलिए, इलेक्शन करता है। कौन कह रहा है इलेक्शन करता है? सिलेक्शन करता है बेटा। चलिए कौन बताएगा? आई ड्रॉपर टूल। ये सब मैंने पढ़ा दिया है आप लोग को मुझे पूछना था आज। चलिए, इलिप्टिकल मार्की टूल एंड रेक्टेंगुलर मार्की टूल में क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? इलिप्टिकल मार्की टूल एंड रेक्टेंगुलर मार्की टूल। सर Will answer? मैं बताऊं? बताओ। सर रेक्टेंगुलर मार्की टूल में सर वो इमेज रेक्टेंगुलर सेलेक्ट होती है और इलिप्टिकल में सर वो सर्कुलर या फिर ओवल शेप में होता है। यस, तो जो भी इमेज होगा अगर वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में सिलेक्शन होगा तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल होगा, और ओवल शेप में सिलेक्शन होगा तो इलिप्टिकल मार्की टूल होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कोई डाउट है? नो चलिए, सर। No, sir. अब ये मार्की टूल है ना, पहला वाला रेक्टेंगुलर मार्की टूल है। इसका साइज कैसा आ रहा है? रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा है। अब इसी को इलिप्टिकल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सर्कल आएगा, ओवल आएगा। क्या आएगा? सर्कल Oval. आएगा या ओवल आएगा? ओवल। देखो है कि नहीं? Yes, sir. यस Sir. सर। नेक्स्ट, सिलेक्टिंग विथ लैसो टूल। लैसो टूल क्या करता है? फ्री हैंड सिलेक्शन करता है। लैसो टूल क्या करता है? फ्री हैंड सिलेक्शन करता है। फ्री हैंड का मतलब क्या होता है कि आप जहां जहां कर्सर पिन करेंगे वहीं वहीं सिलेक्शन होगा। देखो, मैं जहां जहां कर्सर पिन करूंगा बस वहीं वहीं सिलेक्शन होगा। कहां कहां होगा? जहां जहां कर्सर मैं पिंग करूंगा बस वहीं पे सिलेक्शन होगा। यस सर। कोई डाउट है किसी को? No, देखिए, नो मैं सर। No, sir. देखिए, और No, मैंने sir. यहाँ पे दूसरा कैनवस ले लिया। No, ठीक है, sir. नो सर। दूसरा कैनवस मैंने यहाँ ले लिया है Sir. और क्या करूंगा? यहाँ से इसको मूव कर दूंगा। इसको नो मूव कर, सर। देखिए इमेज इसमें आ रहा है लेकिन हमारा बैकग्राउंड कलर यहाँ खुल रहा है। बैकग्राउंड। यस सर। इस बैकग्राउंड कलर को हम चेंज कर लेते हैं। Sheet is not opening. I will not try it later. Yeah. Just go away. ओके, 10 मिनट का टाइम बेटा बचा है हम लोग के पास, तो लेट्स फिनिश ऑल द थिंग्स। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग लैसो टूल, मार्की टूल, सिलेक्शन टूल, क्रॉप टूल, देन यू कैन आंसर, यू कैन क्वेश्चन। 10 मिनट का टाइम सर बचा है। मैजिक विंड टूल। मैजिक विंड टूल क्या करता है? व्हेनेवर वी यूज मैजिक विंड टूल, एक ही बार में सिलेक्शन होता है, वन क्लिक में सिलेक्शन होता है। मैजिक विंड टूल क्या करता है? वन क्लिक में सिलेक्शन। जैसे मैंने एक ही बार क्लिक किया, वन क्लिक में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, दैट इज मैजिक विंड टूल। जैसे एक ही बार में पूरा सिलेक्शन हो गया, दैट इज मैजिक विंड टूल। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? देखिए बुक में मैं देखते जाता हूँ। रेगुलर लैसो टूल, पॉलीगन लैसो टूल एंड मैग्नेटिक लैसो टूल। मैग्नेटिक लैसो टूल क्या होता है? कौन बताएगा?
ओके, इमेज को जब हम डार्क करते हैं तो कौन सा टूल यूज होता है, और लाइट करते हैं तो कौन सा टूल यूज होता है? Who will answer? What is clone stamp tool? Sir, I have a doubt. सर बर्न टूल और वो डॉट टूल से होता है सर, लाइटन और ब्राइटन। बर्न टूल क्या करता है? लाइट डार्क करता है, और डॉट टूल क्या करता है? लाइटन। राइट करता है। सर क्लोन स्टैम्प टूल मतलब जहां जहां हम इवेंट्स में सिलेक्शन करते जाएंगे उतना ही उसका क्लोन या फिर मतलब सेम कॉपी बनता जाएगा। ओके, Sir, I तो ये have a doubt. हाँ पूछो। Sir, how we can use paint bucket tool? पेंट बकेट टूल जब पूरे कैनवस पर एक साथ एक ही कलर अप्लाई करना होता है तो हम कौन सा टूल यूज करते हैं? पेंट बकेट टूल। क्लियर? Yes, sir. What is foreground color? What is foreground color and background color? Who will answer? Sir, background color is a canvas color, sir, and the image in the image the color is called foreground color. जो इमेज होता है दैट इज फोरग्राउंड कलर, और इमेज के पीछे वाला जो हिस्सा होता है दैट इज बैकग्राउंड कलर। क्लियर? चलिए, Yes, sir. ये तो कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, बहुत आसान है। और कुछ पूछना है आप लोग को बच्चों? और कुछ पूछना? ऑटो कंट्रास्ट क्या होता है? व्हाट इज ऑटो कंट्रास्ट? ऑटो कंट्रास्ट, ऑटो कंट्रास्ट। ऑटो कंट्रास्ट। Sir, in auto contrast, sir, image lighten or brighten, sir, by itself, by the use of image, अगर मतलब सर अगर उसे डार्कन करने की जरूरत है वो तो खुद से हो जाएगा, और लाइटन Yes. करने की जरूरत है तो वो भी हो जाएगा अपने आप से। It will adjust the color. Clear? That is auto contrast. तो बच्चों, it was your class. Still, if you have any doubt, then आप अपने doubt ये, और क्लास में मैं देख रहा हूँ जस्ट 34 मेंबर आज इंक्लूड हुए हैं, तो मतलब बहुत कम लोग क्लास कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर, पूछिए। सर अगर हम पिक्सल इमेज की ज्यादा करेंगे तो पिक्सल ज्यादा क्लियर आती है? यस, जितना ज्यादा पिक्सल होगा उतना ही क्लियर इमेज होगा। क्लियर? कोई डाउट? ओके सर। नो सर। चलो, और कुछ? No doubt, sir. तो आज की क्लास Sir, ओवर की जाए। next class chapter 7, sir. हाँ, उसके बाद चैप्टर 7। फोटोशॉप पे मैंने 3 क्लासेज ले ली हैं, अब चैप्टर 7 शुरू करेंगे, ठीक है? उसके डाउट्स पूछेंगे Okay, sir. उस पे हम, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कौन सा चैप्टर देखेंगे? कौन बताएगा? Chapter 7. More on visual basic. More on visual More on basic. visual. तो काम करेंगे 6 और 7 एक ही साथ देख लेंगे। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. दोनों एक साथ देखेंगे। क्लियर? कोई Introduction डाउट है to कि visual basic. एनी डाउट एनीवन? No, sir. Okay, so Sir, can we do 3D No doubt. Photoshop? Sir, when school will open? Yes, sir. जैसे ही बेटा स्कूल से मैसेज आ जाएगा वो स्कूल खुल जाएगा। स्कूल से अगर आपको मैसेज मिलेगा तुरंत स्कूल खुल जाएगा, ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. किसी भी ऑथेंटिक सोर्स पे ही आप बिलीव करिएगा। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो आप तुरंत फोन करने लगे। जब तक ऑथेंटिक आपको कोई मैसेज नहीं मिलता स्कूल से, ठीक है, तब तक किसी की बात सही नहीं होगी, ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.